بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فساد کی جڑ، جس کو یہ آئینی ترمیم کہتے ہیں یا اس کو غیر آئینی ترمیم کہہ لیں، کیوں اگر وکلاء اور جو معزز جج صاحبان ان کا نظریہ دیکھا جائے تو یہ غیر آئینی ترمیم اور غیر آئینی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پاکستان کا مفاد ہے کہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا مفاد ہے، پاکستان کے آنے والے مستقبل کا مفاد ہے، آنے والی نسلوں کا مفاد ہے؟ جو چیزیں سامنے آئی، جو مسودہ ابھی جو ہے، جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو شیئر کیا، اس کے کچھ نکات ہیں۔ جس طرح میں نے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو بھی لگائے جائیں گے وہ وزیر اعظم صدر مشاورت کریں گے، ایک کمیٹی جو ہے وہ نام تجویز کرے گی، جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ ایک آئینی درخواست جو ہے وزیر اعظم کو ارسال کریں گے، وزیر اعظم جو اس کو پاس کر کے آگے بھیجیں گے اور اس کے بعد پھر آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوں گے۔ اس میں تمام انسانی حقوق معطل ہوں گے، جس کو جہاں جی چاہے اٹھایا جائے گا، جس کے اندر جو ملٹری کورٹ کا اہم عمل دخل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو انسانی حقوق ہیں وہ معطل ہو جائیں گے۔ جس طرح بادشاہت کا نظام ہے وہ لگا لیں، کو بادشاہ سلامت جو حکم کریں گے وہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ جو ان کا مین ہدف ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنا اور عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ تک جیل کے اندر رکھنا، تاکہ نہ عمران خان صاحب باہر آئیں، نہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو مزید جو سزا وہ کوئی اہم قسم کی دے دی جائے۔ گزشتہ دنوں کے اندر بھی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے مرسی کی طرح یہ جیل کے اندر جو ہے قتل کرنا چاہتے ہیں یا پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم کو بارہا دفعہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی مگر ناکام رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ جو وفد گیا تھا ملنے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا پریس کانفرنس کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ایز سچ آپ سنیں۔ گوہر خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا۔ جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے، اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے۔ متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا، آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی، آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے۔ آئین پاکستان بنا ہے، آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا۔ اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا۔ 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی، ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم
किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है। हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे। असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं। आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं। पैकेज पे हमने इत्तिफाक किया। मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालात हैं, जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर साहब ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लिमान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पर कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहां तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच के
स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे, लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फैसला है। आज के दिन यानी जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज पहले 11 बजे का टाइम था, फिर उसके बाद उसको जो है वो अब तब्दील करके वो टाइम जो है वो चेंज किया गया। आईनी तरमीम की तरफ जो है कौमी असम्बली सेनेट के अंदर और कमेटी के अंदर जो है वो रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी। सब चीज़ें जो ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, इसका जो निचोड़ लब्बे लवाब ये है कि आईनी तरमीम के पीछे बहुत बड़ा एक खेल है, जो खेल जब हो जाएगी पास, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात जो है सामने आने शुरू होंगे। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को इस निशाने इबरत बनाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान जिस वजह से पाकिस्तान इस गढ़ के अंदर गिरा, जो रजीम चेंज हुआ, क्या वो मुबालक जो बैरूनी दुनिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाते हैं, जो हर काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक के जो मामलात हैं वो भी खौफनाक हद तक जो है वो भारत और इसराइल से भी बढ़ गए हैं, लेकिन वो खामोश सिर्फ एक बयान की हद तक वो बयान देते हैं? क्या उनका कोई एजेंडा है जिसके ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी तरह क्या भारत का कोई एजेंडा है जिसको कबूल करने के लिए हमें दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर? क्या जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात को हमें भूलना पड़ेगा? जिस तरीके की आवाज़ें जो कुछ आ रही हैं, जो यूएनओ के अंदर तकरीर हुई, जो कुछ वहाँ पर स्टेटमेंट दी गई, या जो पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक के अंदर आवाज़ उठाता है उसके साथ जो कुछ होता है, लेकिन जो आईनी तरमीम की असल कहानी है वो किसी को अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन एक खौफनाक वो मसवदा है जो कौम के सामने आएगा। कौम और पाकिस्तान की 70 साल तारीख जो है वो लर्ज उठेगी जब ये सारे हकायक सामने आएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। एक ऐसी गुत्थी है जिसको खोलने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आज या कल तक हो जाएगा? जो बातें मौलाना फजल रहमान साहब ने कही, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कही, और जो बैठा इमरान खान जेल के अंदर सोच रहा है, वो तमाम चीज़ें एक आम जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो बंदा भी सोच रहा है कि ये खेल पाकिस्तान के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई बैरूनी एजेंडा शामिल है जो इनके ऊपर दबाव है? इतना 10 साल प्रोग्राम जो है, क्या उसकी वजह से ये आईनी तरमीमें की जा रही हैं ताकि तमाम प्रोजेक्ट और तमाम मोरे जो हैं वो 10 साल तक जो है वो इस निज़ाम को सपोर्ट करें? और जो इस चीज़ का मुखालफ आदमी था, जो कहता था आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, फ़लस्तीन को हक मिलना चाहिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर को हक मिलना चाहिए, अफ़गानिस्तान के लोगों को हक मिलना चाहिए, वो तमाम ममालिक के साथ बातचीत करना चाहता था, उसको कॉर्नर किया गया, जेल के अंदर डाला गया। और उसके बाद अगला जो इनका हदफ है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका जो है निज़ाम डालकर उसको लंबी सज़ा दी जाए ताकि उसकी सियासत ख़त्म हो जाए, उसकी पार्टी ख़त्म हो जाए। शेख मुजीबुर रहमान को दबाने की कोशिश की गई, भुट्टो को दबाने की कोशिश की गई, बेनज़ीर को दबाने की कोशिश की गई, और इसी तरह मुख्तलिफ वज़ीर आज़म जितने भी आए उनको दबाने की कोशिश की गई। आखिरी जो दबाव का शिकार हुआ वो इमरान खान हुआ। अभी जो कोशिश होगी आखिरी, वो आज क्या उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, इसका जो जिक्र है वो अगली वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूँगा।